class 7th. As you know, we have read half part of the chapter number 3, animal fiber and fabric. Now we start our second part, and this is the silk. Today we have read about silk, its processing, its use, its history, and continue with our question answer. Okay. As you know, wool has been readily available as raw material since the earliest civilization, when man was learned to domesticate sheep and goats. In earlier time, wool and linen and leather were the cloth for the common man. कॉमन मैन जो था वो वूल पहनता था, लिलन पहनता था या लेदर वियर करता था. But very few people had heard about cotton cloth and about silk. Silk and cotton was the symbol of luxury because silk was discovered in China, and this is very lustrous and fine quality of fiber, and it is very costly. So only emperors, only ruler person was only wear these silk and cotton cloth. It was through trade that silk spread to other parts of the world. Over a period of time, silk was a staple item of trade during ancient time. Due to this, the ancient trade routes which linked with China to the other parts of the world are called Silk Route. सिल्क चाइना में पैदा होती थी, चाइना में डिस्कवर हुई थी, तो चाइना से जो अदर पार्ट्स तक रूट जाते थे जहाँ पर कि इसका ट्रेड होता था, उन पार्ट्स को, उन रूट्स को सिल्क रूट कहा जाने लगा. टुडे चाइना इज़ द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि डिस्कवर भी चाइना से हुई है और आज तक भी चाइना ही सबसे ज़्यादा सिल्क को प्रोड्यूस कर रहा है. अदर मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, इंडिया एंड इटली. जापान, इंडिया. Silk fiber is obtained from the cocoons of the silkworm, silk moth. The silk moth live on the leaves of mulberry plant. जो सिल्क मोथ है उससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है और ये मलबरी प्लांट्स, शहतूत के प्लांट्स पर लिव करती हैं. टाइप्स ऑफ सिल्क. Different type of silkworm produce different type of silk in term of luster and texture. Example, tussar silk, muga silk, kosa silk, etc. And these type of silks are described by your mother. You know, your mother have different type of sarees. तो आज आप अपनी मदर से पूछेंगे कि आपके पास किस किस तरह की सिल्क की साड़ी हैं, वो आपको बताएंगी. Etc. are produced by different type of silk moth. Mulberry silk is the most common silk moth. मलबरी सिल्क मोथ जो है वो सबसे कॉमन सिल्क मोथ होता है. नाउ सेरिकल्चर. व्हाट इज सेरिकल्चर? द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क is called sericulture. Very important definition, sericulture. जब हम सिल्क मोथ को रियर करते हैं, पालते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज कॉल्ड सेरिकल्चर. इट इज नाउ कन्वर्ट इन ए ऑक्यूपेशन. एक ऑक्यूपेशन बन चुका है सेरिकल्चर का. हनी बीज को पालना फॉर हनी और सिल्क वर्म को पालना फॉर सिल्क एंड
शीप वगैरह को रियर करना फॉर वूल, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस नाउ. Look at the picture. This is male moth or silkworm. This is female silkworm. This is of small size and this is of big size. And look at the color difference. This is whitish, creamish, and this have very beautiful colors. Now, life cycle of silkworm. There are 4 stages in the life cycle of silk moth: eggs, larva, pupa and adult. 4 स्टेज होती हैं सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल में. फर्स्ट इज एग, सेकंड इज लार्वा, थर्ड इज प्यूपा एंड फोर्थ वन एंड लास्ट इज एडल्ट. फीमेल सिल्क मॉथ lays egg and these eggs are laying in group and in jelly substance. ये जो फीमेल सिल्क मॉथ है ग्रुप में एग देती है और वो एग जो हैं जेली जैसे सब्सटेंस में होते हैं. और जो जेली होती है वो ये काम करती है कि इन एग्स को गिरने से बचाती है, इन एग्स को डैमेज होने से बचाती है. बिकॉज फीमेल सिल्क मॉथ lay eggs on mulberry leaves or mulberry plant. Now these eggs store in about 6 days after they are laid in cold storage. अब इन एग्स को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है 6 से कुछ आगे दिनों तक के लिए. Then the eggs are bathed in warm water and air dried. Then they are incubated until they hatch and become worms. अब इसको हम क्या करते हैं, गर्म पानी में रखते हैं, फिर उसको एयर ड्राई करते हैं, फिर उनको इंक्यूबेटेड यानी कि उनको वार्मनेस देते हैं जिससे कि वो हैच हों और हैच होकर एग में से लार्वा डेवलप हो. And these larvae called caterpillar. And in about 14 days to 30 days eggs convert into larva. यानी कि egg से larva convert होने में करीब 14 से 30 days का समय लगता है. And this period is called incubation period or hatching period. Now the larva. Larva is a tiny worm, white in color and about 5 to 6 millimeter long, about 1/4 inch. बहुत छोटा सा होता है, बहुत sophisticated होता है. And this delicate worm need a lot of care, silent and stationary environment is must for its survival. इसको आगे अगर आपको सरवाइव करवाना है, लिव रखना है, तो आपको इसको बहुत केयर देनी पड़ेगी. इसको एक स्थिर एनवायरनमेंट देना पड़ेगा और केयर के साथ साथ इसको स्टेशनरी पोजीशन में रखना पड़ेगा. These worms are placed on bamboo trees. अगर आप रियरिंग आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं तो इनको आप एक बम्बू ट्रीज पे रखिए एंड कवर विद स्ट्रॉ मैट्स एंड लेयर ऑफ सेलेक्टेड फाइनली चॉप्ड मलबरी लीव्स. नाउ वन क्वेश्चन इन अकर, व्हाट इज मलबरी लीव्स एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मलबरी लीव्स. मलबरी लीव्स जो है वो शहतूत की सॉफ्ट लीव्स रखी जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर फीडिंग. इससे वो अपना फूड न्यूट्रिएंट लेते हैं लार्वा. तो मलबरी लीव्स इनको एक तरह से खाने के लिए आप दे रहे हैं. द ग्रीडी वर्म्स फीड फॉर दिस मलबरी लीव्स. इफ द प्रोसेस इज नेचुरल देन इट्स लार्वा और एग इज ऑन मलबरी प्लांट. अगर ये जो प्रोसेस है वो नेचुरल है, प्लांट के ऊपर है, तो ये
लार्वा जो है वो प्लांट पे होगा, तो ये प्लांट पर क्या करेगा, ये जो लार्वा है इट अटैचेज इटसेल्फ टू ए पीस ऑफ स्ट्रॉ और क्लाइंबिंग ब्रांच ऑफ ट्री। तो ये जो लार्वा है ये अपने आप को किसी स्ट्रॉ के पीस पर अटैच कर लेगा या किसी क्लाइंबिंग रोप पर अटैच कर लेगा और बिगिन टू स्पिन इट्स कोकून। अब ये अपना कोकून बनाना स्टार्ट कर देगा। नाउ हाउ इज कोकून डेवलप? द लार्वा और सिल्क वर्म हैज़ टू ओपनिंग्स अंडर द वर्म्स माउथ। माउथ के नीचे इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं एंड ओपनिंग में से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। When the saliva is come in contact with air, this saliva is converted into filaments or fibers. These filaments or fibers attach with each other with a gum-like liquid. With a gum-like liquid, exudes from the apparatus in the worm's mouth and cause the fiber to adhere to one another. तो ये जो आपका वर्म है इसके अंदर फिलामेंट या फिर फाइबर्स बनते हैं और ये फाइबर्स एक गम जैसे लिक्विड से एक दूसरे से अडेयर यानी कि चिपक जाते हैं और ये जो गम लाइक लिक्विड है ये वर्म के माउथ से निकलता है और इन फाइबर्स को आपस में अटैच करता है। एंड नाउ सिल्क वर्म कवर इटसेल्फ विद दीज फिलामेंट्स एंड द कोकून इज मेड अप एंड दिस कोकून इज मेड अप इन 15 to 20 days. फर्स्ट एग, सेकेंड स्टेज हो गई लार्वा। लार्वा ने डेवलप कर लिया अपने चारों तरफ कोकून। नाउ लार्वा कन्वर्ट इनटू प्यूपा इन दिस कोकून। अब जो लार्वा है वो जो लार्वा है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा इस कोकून के अंदर। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ कोकून ग्रो इनटू सिल्क मोथ। और जब ये कोकून से बाहर आएगा प्यूपा तो ये सिल्क मोथ में कन्वर्ट होगा। लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज अडल्ट moth. This is adult moth. It lays egg into groups. Egg into groups. This egg is on mulberry leaves and in a jelly-ish substance. Now these eggs convert into caterpillar larva in 14 to 30 days. 14 से 30 days में. Now it's develop its cocoon and in cocoon caterpillar larva change into pupa and pupa cut the cocoon and come out and develop into silk moth, adult silk moth. This is silk moth, then egg, then larva, then cocoon, and in cocoon larva convert into pupa and pupa now convert into adult silk moth. This is mulberry tree. ये आपके मलबरी ट्री है और ये आपके शहतूत हैं, आपने देखे होंगे ये। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ involves 4 steps. First is rearing silkworm. Now second is reeling, then dyeing, and then spinning and weaving. सबसे पहले हमें सिल्कवर्म को रियर करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। उसके बाद उससे हम फिलामेंट फाइबर्स लेंगे, उनकी रीलिंग करेंगे, फिर उसको डाई करेंगे, डाई करके उसको स्पिनिंग और वीविंग करेंगे इनटू फैब्रिक। ये आपका सिल्क मोथ है।
इसने एग ले कर दिए मलबरी लीव्स पर, ये लार्वा, ये कोकून, कोकून से फाइबर, फाइबर से ये देखिए यहाँ पर आगे का काम हो रहा है, रीलिंग और फैब्रिक वगैरह बन रहा है। नाउ रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग. Egg are stored over a clean cloth or paper stripes. The eggs are warmed to a suitable temperature. The eggs hatch into larvae called caterpillar or silkworm. अब आपसे ये पूछा जाए कि एग कहाँ है। एग आपके या तो आप टिश्यू पेपर पे रख रहे हैं या फिर आपके पास मलबरी प्लांट होना चाहिए। उसके बाद एग से हैच होता है कैटरपिलर। The silkworm are kept in bamboo trays and feed on mulberry leaves and grow in size. After 30 to 40 days, the silkworm stop eating and begin to spin cocoon. Cocoon get hardened because of exposure to air. Inside the cocoon, the silkworm develop into silk moth. ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाया हुआ है। अब अगर हम कोकून को यहाँ पर वैसे ही छोड़ दें तो उसके अंदर कैटरपिलर लार्वा प्यूपा में चेंज हो जाएगा। देन प्यूपा कम आउट बाय कटिंग दिस कोकून। कोकून को काट कर आपका प्यूपा बाहर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, कोकून का जो फाइबर है वो खराब हो जाएगा, वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो अगर हमको फाइबर प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है। The cocoons are collected and kept in sunlight or boiled or exposed to steam. हमको हीट करना है इन कोकून्स को, या तो सनलाइट के द्वारा या फिर आप उनको बॉईल करिए, यानी कि आप उनको उस टैंक में डालिए जिसमें बॉइल्ड वाटर हो, या फिर उस टैंक के ऊपर रखिए जिसमें बॉइल्ड वाटर हो, जिससे कि उनको स्टीम मिले। अब क्या होगा, अंदर का जो प्यूपा है या फिर कैटरपिलर लार्वा है ये डेड हो जाएगा, और डेड होने के बाद आप उनको सेपरेट कर देंगे और कोकून आपको साबुत बिना कटा हुआ मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोकून से सिल्क थ्रेड को अलग करना है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग। कोकून से आप जब सिल्क थ्रेड को अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को आप रीलिंग कहते हैं। रीलिंग इज डन बाय मशीन्स। रीलिंग को मशीन के द्वारा किया जाता है। लुक एट दिस पिक्चर, दीज आर योर कोकून्स। यहाँ इनको स्टीम दिया जा रहा है, यहाँ पर इनको बॉईल किया जा रहा है, और उसके बाद उसमें से थ्रेड अलग किया जा रहा है। थ्रेड्स को आप इन मशीन के द्वारा रीलिंग कर रहे हैं, थ्रेड्स को रीलिंग कर रहे हैं, और रीलिंग करने के बाद उनसे फैब्रिक बनाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, डाइंग। द सिल्क फाइबर आर देन डाइड इन डिफरेंट कलर। जैसे हमने वूल को अलग अलग कलर में डाई किया था, now it's turn of silk. Now silk is dyed in different colors. Now next, last, spinning and weaving. The silk fiber are then spun into threads. अब इनको threads में spun किया जाता है। फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट किया जाता है और उसको थ्रेड्स में चेंज किया जाता है। देन थ्रेड्स वूवन इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क क्लॉथ, जिसको हम फाइबर कहते हैं। फाइबर से अलग अलग तरह की ड्रेसेस बनाई जाती हैं। दिस इज स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ सिल्क। ये आपकी लूम की सहायता से खुद अपने हैंड वोवन कर रही है दोनों लेडीज़, और फाइबर्स बन रहे हैं। दिस इज वीविंग। नाउ यूज ऑफ सिल्क। सिल्क इज ए कॉस्टली फैब्रिक। सिल्क फाइबर इज यूज्ड फॉर वीविंग क्लॉथ्स, especially traditional dresses like sari, suit, kurta, shawl and other wedding clothes. Silk had always been prized for its luster
एंड फाइन क्वालिटी। जितना फाइन आपके पास, जितना फाइन पतला सिल्क होगा वो उतना ही कॉस्टली होगा, उसका लस्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। द कंट्रीज विच प्रोड्यूस सिल्क ऑन ए लार्ज स्केल आर चाइना एट फर्स्ट रैंक एंड इंडिया। इंडिया में भी बहुत सिल्क अब होने लगा है। नाउ योर chapter is complete today. Watch this video carefully and read with your book also. Thank you.